लोग दम तोड़ रहे थे। ऐसे में ड्रोन का आइडिया लोगों के दिमाग में आया और अब इसी ड्रोन के जरिए दवाएं पहुंचाने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए कर्नाटक में 100 घंटों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन आपके लिए दवाएं लेकर आएगा। आसमान से अब आएंगी दवाएं, ड्रोन घर घर पहुंचाएगा मेडिसिन। कर्नाटक में 100 घंटों का ट्रायल। मेडिकॉप्टर आसमान में उड़ चुका है और इसको कंट्रोल रूम से कमांड किया जा रहा है। इसमें जान बचाने वाली जरूरी दवाओं का बॉक्स है। लोकेशन डेटा में फीड है और ये सीधे आपके घर तक मेडिसिन की सप्लाई करेगा। भारत में पहली बार दवाओं और वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने जा रहा है। कर्नाटक में 100 घंटे का ट्रायल शुरू हो गया है। इसमें 20 ड्रोन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ट्रायल्स का मकसद दवाएं ही नहीं बल्कि दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने की संभावनाएं तलाशना भी है। इसी तरह के ट्रायल्स कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी होंगे। We will be testing this particular trial for 30 to 45 days. So this trial will succeed. If this trial succeeds, then we can get into commercials. So here we have two particular copters to do this test. One is Medcopter X4 and one is Medcopter X8. So what is Medcopter X4, X8 is, Medcopter X4 will travel to one particular point, base station to another station, and hovers in a particular altitude and starts tethering your delivery box. Medcopter X8 is basically for some of the deliveries, sensitive deliveries. It will just be packed and you can actually land the drone and you can open up the box and take the delivery, the safety box. Okay, so this particular experiment will take almost 100 hours of experiments we are going to do. Each day somewhere around 8 hours of experiment. सुनने में ये बहुत महंगा लग सकता है, पर सच ये है कि ड्रोन तेज भी है और सस्ता भी। 30 किलोमीटर की दूरी पर वैक्सीन या सामान पहुंचाने में ड्रोन पर लगभग 600-700 रुपए ही खर्च होंगे। यानी रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ड्रोन से सामान पहुंचाना करीब 60% सस्ता होगा। समय भी सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे। 100 घंटे का ये ट्रायल कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के शाम्बुका नगरा में चल रहा है, जो अगले 40 से 45 दिनों तक चलेगा। बेंगलुरु की टीएस कंपनी इस ट्रायल में शामिल है। ट्रायल के लिए 2 मेडिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। In this experiment, we are using 2 copters mainly. One is a Medcopter 4X and another is a Medcopter 8X, X8 we call. See, first one will carry the 2 kg capacity, which will take up to 12 kilometer range, and another one is carries 1 kg and goes up to the 15 kilometers. This main idea of this experiment is we wanted to if you ask what the benefit for the society in emergency situations, medical emergencies especially, timely medicine is very, very important. In such situations, for example, let's take 2 hospitals. In every hospital, all kind of medicines not available, or the blood is not available. In such situations, a hospital to hospital or a blood bank to a hospital, in any emergency situations, we can very quickly can transport the medicines. एक मेडिकॉप्टर ड्रोन 1 किलोग्राम तक के पैकेट 15 किलोमीटर के दायरे में डिलीवर करने की क्षमता वाला है, जबकि दूसरा मेडिकॉप्टर ड्रोन 2 किलोग्राम के पैकेट 12 किलोमीटर के दायरे में डिलीवरी कर सकता है। In India, we are doing the first of its kind experiment called the BVLOS. BVLOS trials we are doing here. The BVLOS means beyond visual line of sight. As per the DGCA norms, at present we can fly the drone on a visual line of sight. That means we call that is a VLOS. Another operation called the EVLOS, that is the extended visual line of sight. These are the 2 operations that presently allowed. So, but because of these restrictions, we cannot utilize the drone to the maximum its capabilities. So, we need an operation permissions to operate in BVLOS operations. So, when we have a BVLOS operations, we can travel like to the 10 kilometers, 50 kilometer range in a one stretch. So, it helps in a very, efficiency of the drone applications will really increase.
Here what we are doing is using the drone we are trying to deliver medicines from one place to other place. If it is completely autonomous mode, we can choose the 2 coordinates where you has to be pick the medicine starts take off the copter and then where it will delivers. डीजीसीए की गाइडलाइंस के मुताबिक वो ड्रोन के इस कॉमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत तभी देगा जब कंपनियां 100 घंटे का सफल ट्रायल पूरा कर लेंगी। ऐसे में टीएस ने 120 घंटे का ट्रायल करने की योजना बनाई है। अगले 40 से 45 दिनों तक कर्नाटक के आसमान में ये ड्रोन हवा में ऐसे ही मंडराते हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैक्सीनेशन को लेकर जहां तरह तरह की बातें सामने आ रही हों, वैक्सीन को लेकर भ्रम से कौम तक की बातें हो रही हों, वहां सभी को हरदर से आई ये खबर जाननी चाहिए, जहां धर्म की परिभाषा जिंदगी की सुरक्षा हो गई है। इसी के साथ अब वैक्सीन भी हो गया जरूरी। खेड़ीपुरा मोहम्मदी मस्जिद के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है। अजान से सुबह होती है यहाँ पर, आरती से शाम, कोई खुसरो को गाता, कोई मीरा के गाए शाम। जहां देश का झंडा हरा और केसरी रंग का, उसे दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। किसी शायर ने हिंदुस्तान की तासीर को लिखा था और हरदा वालों ने कोरोना को हराने के लिए इस शायरी को सच में तब्दील कर दिया। जी हां, अभी तक आपने मस्जिदों से नमाज पढ़ने अजान की आवाज सुनी होगी, लेकिन हरदा में मुस्लिम समाज ने अनोखी पहल करते हुए अब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने का काम शुरू किया है। इतना ही नहीं, शहर के खेड़ीपुरा इलाके में स्थित सुन्नी मोहम्मदी मस्जिद में जिला प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी को दी गई है। इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर क्या होगी कि अब मस्जिद में माइकल, मंजीत और मतीराम भी संजीवनी का डोज लगवाएंगे। अभी प्रशासन के टीकाकरण महाअभियान के तहत यहाँ खेड़ीपुरा मस्जिद में सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर मैं अपनी माताराम को लेकर टीका लगवाने आया हूँ। यहाँ पर मस्जिद कमेटी के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों को टीका लग रहा है। खेड़ीपुरा रहती हूँ, मैंने वैक्सीन लगवाया। कहाँ लगवाया? मस्जिद में, खेड़ीपुरा मस्जिद में लगवाया। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट है कुछ इसका? मस्जिद कमेटी से जुड़े गुलाम मुस्तफा अख्तर ने बताया कि इस नेक काम में मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, मस्जिद में टीकाकरण अभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब का आदेश हुआ था, मस्जिद कमेटी ने आपस में बैठ कर निर्णय की कि एक नेक काम है, इसमें सभी को जन सहयोग के साथ आगे आना चाहिए। उसी के फलस्वरूप आज हमने मस्जिद के अंदर टीकाकरण अभियान शुरू करवाया और इसके अंदर हमको बहुत अच्छा प्रसाद मिला। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सभी धर्म के लोग यहाँ आए। स्थानीय नेताओं समेत कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज लोग आगे बढ़ के आए और मुस्लिम समाज ने मुझे अनुरोध किया कि हमारे मस्जिद में भी टीकाकरण का केंद्र रखा जाए और इस टीकाकरण के महाअभियान में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मस्जिद में भी एक हमने टीकाकरण केंद्र बनाया था और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आके अपने टीकाकरण करवा रहे हैं और यहाँ पे सभी मस्जिदों में कल रात से अनाउंसमेंट चालू कर दिया था। वैक्सीन से कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन हरदा से निकली सद्भावना की संजीवनी की खबर इंसानियत और हिंदुस्तानियत को मजबूत करने का असल डोज है। पवन सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। संविधान में आए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द